study in geography. That is something different. This is something different. ठीक है? This is agriculture, but the economic policies of the government towards agriculture. ठीक है? The economic policies of the government towards agriculture. The programs which are focused towards boosting the agricultural productivity and everything else related subsidies, related fertilizers, related microfinancing of agriculture. ये सारा कुछ यहाँ का डोमेन है. Agriculture in its entirety as a concept of geography is in geography. ठीक है? वो अलग है. तो if we go to the colonial era, revenue from agriculture was the basic source of income. Revenue was from the agriculture was the basic source of income, and the system present was zamindari. Zamindari system. ठीक है? Zamindari system. You had जागीरदारी system. ज़्यादा difference नहीं थी इनमें. ठीक है? But what was the main focus? That the Britishers used to appoint what? Zamindars. And zamindars were extracting what? Revenue from the land. जिनके पास land था, land owners or peasants or whatever, जो भी cultivation करते थे. What happened? Due to time and money which came to zamindars, there came elitistic tendency in them. Elite बन गए. And they shifted their headquarters to the capitals or urban areas. एंड आपके जो फार्मर्स हैं, जो इनका जागीर है, जो इनकी जमींदारी जो एरिया इनके अंदर है, दैट इज इन द रूरल एरिया. तो वहां से अर्बन एरिया से टू रूरल एरिया मल्टीपल इंटरमीडिएरीज केम इन बिटवीन द एक्चुअल जमींदार एंड द फार्मर, पुअर फार्मर, पीजेंट. एंड इनकी वजह से इनका अपना जो कॉस्ट है, जो ये बीच में निकालने लगे, वो बढ़ गया. ठीक है? अगर ये इसको पे करते थे 100, अब ये बीच में आए, ये बोल रहा है मुझे 70 किसी हालत में चाहिए, बाकी आप लोग आपस में देख लो, लेकिन 30 में इनका गुजारा नहीं हो रहा है. देन दे आर एक्सट्रैक्टिंग मोर एंड मोर, दे वांट मोर एंड मोर फ्रॉम दिस पर्सन. ठीक है? एंड दे आर नॉट विलिंग टू स्पेंड ऑन एग्रीकल्चर. तो कॉलोनियल एरा में एग्रीकल्चर वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अफेक्टेड एरिया. ठीक है? जो सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ है, दैट वाज एग्रीकल्चर. ठीक है? देयर वाज नो इनपुट विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी और एनी अदर थिंग, नो इन्वेस्टमेंट. ऊपर से ये खुद इन्वेस्टमेंट करते पीजेंट्स, दे वर लाइक उनके पास खुद पैसा नहीं था. तो एग्रीकल्चर सफर्ड अ लॉट. जो ही इंडिपेंडेंस मिली, द फर्स्ट इकोनॉमिक 5-year प्लान वाज kept in mind what was made, kept in mind the agricultural policies. The third economic plan, 5-year plan, was kept in mind making agricultural policies or agriculture a better source of income. ठीक है? For the farmers and agriculture की productivity increase हो. तो क्या हुआ? जो ही आज़ादी मिली, हमारे पास we had agriculture that was subsistence. मतलब जो बोते थे वो खाते थे, बस इतना कुछ था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था. In the post-independence India, there was a population boom. And when there was population boom, automatically with the population there arises need for food grains. This is common sense. और यहाँ से agriculture इतना productive नहीं था किसी भी angle से that it would match the demand. So what Indian government thought that they will procure the food grains. In short, they will import it. And we made an agreement, ठीक है? PL 480 with United States of America. Or United States of America used to send us what? Food grains. तो ये चलता रहा. But eventually United States of America इनका हुआ वियतनाम के साथ war. ठीक है? It's a famous war. ठीक है? US-Vietnam war. And they wanted India to take side of United States of America and Vietnam war. However, India tried to remain what? Neutral. ठीक है? तो यहाँ पे they stopped the supply of PL 480. Then the Indian leaders thought कि अब बहुत हो गया. We should do something so that our own productivity increases. क्योंकि food के लिए we are dependent on someone. They can easily manipulate our foreign policies, everything. ठीक है? Our sovereignty is at stake. Our population is at stake. जब उनको खाना नहीं मिलेगा तो करेंगे क्या? ठीक है? This is the basic thing which they want. तो they started seeing what other avenues we have. ठीक है? इसी आसना में there came a person. Swami Nathan. He is also known as the father of Green Revolution in India. ठीक है? This person was working on high yielding seeds. ठीक है?
ही वाज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट हाई यील्डिंग सीड्स, इसका मेन फोकस था। अमेरिका के नॉर्मन बोरलॉन्ग के साथ भी इसका कोलैबोरेशन था, ठीक है। वहां से इन्होंने हाई यील्डिंग सीड्स प्रोक्योर किए और यहाँ पे इनपुट्स बताए कि इनको कैसे हमें ट्रीट करना है, कितना पानी डालना है, कौन कौन से फर्टिलाइजर्स डालना है, सो दैट प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज, द यील्ड विल इंक्रीज फ्रॉम दीज सीड्स। व्हाट विल इंक्रीज? यील्ड। यील्ड दो तरीके से इंक्रीज होता है, या तो सेम सीड आपको मोर प्रोडक्टिविटी देगा, दिस इज वन टाइप ऑफ यील्ड इंक्रीज। सेकंड टाइप ऑफ यील्ड इंक्रीजेस, या तो इसका ड्यूरेशन जो है वो लेस हो जाएगा, इसके कल्टीवेशन ड्यूरेशन लेस हो जाएगा। आप एक साल में एक क्रॉप उगाते थे, इस हाई यील्डिंग सीड को आप 3 महीने में ही कल्टीवेट कर सकते हो। यील्ड उतना ही है लेकिन 3 महीने में ही कर सकते हो, तो आप साल में 4 बार इसको उगा सकते हो एंड द यील्ड इंक्रीज, ठीक है। या तो टाइम सेम लेगा और प्रोडक्शन इसमें एफिशिएंसी बहुत है और इसमें ज्यादा आपको क्या मिलेगा, यील्ड, टाइम सेम लेगा। या तो दूसरा सिनेरियो, यील्ड उतना ही देगा और टाइम कम लेगा। तीसरा सिनेरियो भी है, टाइम कम लेगा और यील्ड भी ज्यादा देगा, ठीक है। तो दिस was the way that green revolution was introduced where in India by this person, and government wholeheartedly supported this idea, ठीक है। The green revolution was introduced, and why this was introduced? So that we became what? Self-sufficient in terms of what? Food grains. Self-sufficient हम बने in terms of food grains. But with this came a problem. When green revolution was implemented, what happened with the green revolution? Green revolution resulted in increased supply, increased of food grains, increased supply of food grains. But डिमांड नहीं थी उतनी, डिमांड उतनी नहीं थी। हमने जितना चाहा उससे ज्यादा इंक्रीज हुई सप्लाई, किससे? ग्रीन रेवोल्यूशन से, बट उतनी डिमांड नहीं थी। When supply increased, demand is not there. What will happen to the price of the food grains? It will decrease. It will, and what will happen to the earnings of the farmer? They will suffer. Earnings will decrease, farmers will suffer. ठीक है? This is the basic logic. What happened after what? Implementation of green revolution. And the government of India thought that we should protect the interests of farmers by introducing a concept known as minimum support price, MSP. By introducing a concept of minimum support price, MSP. तो ये क्या है? Government of India said that farmers, we are going to announce a minimum support price, a price. अगर आपसे कोई नहीं खरीदेगा, आप हमारे पास आओ, हम इस प्राइस पे खरीद लेंगे। तो इन शॉर्ट व्हाट इज एमएसपी? एमएसपी इज अ प्राइस एट विच गवर्नमेंट इटसेल्फ प्रोक्योर्स फूड ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर्स। गवर्नमेंट इटसेल्फ प्रोक्योर्स फूड ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर्स। गवर्नमेंट ने कहा फॉर एग्जांपल हम देते हैं एग्जांपल, 30 रुपीज का 1 kg में आपका प्रोडक्ट एक्स मैं खरीदूंगा, ये एमएसपी है, ठीक है। आपको अगर कोई 50 दे रहा है, 45 दे रहा है, 35 दे रहा है, यू गो एंड सेल, यू आर फ्री टू डू। मार्केट प्राइस में आपका क्या प्राइस है। लेकिन अगर आपको कोई 25 दे रहा है, 20 दे रहा है, कम टू मी, आई विल परचेज एट 30, डोंट वरी, ठीक है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स फ्रॉम दिस थिंग। देयर इज इंक्रीज सप्लाई एंड द डिमांड इज लेस, टू प्रोटेक्ट द fluctuation in price, to protect the earnings of the farmer and the interest of the farmer, MSP was introduced, ठीक है। तो MSP is that price on which government itself procures from the farmer, ठीक है। अब गवर्नमेंट इस चीज का करती क्या है प्रोक्योर करके? गवर्नमेंट यूजेस these food grains in multiple programs, like you have your public distribution system, PDS, ठीक है। You have your fair price shops, ठीक है। You have the program ICDS, मिड डे मील। इन सारी प्रोग्राम्स में गवर्नमेंट इज यूजिंग दीज थिंग्स। अब एमएसपी किस रेट पे होता है, क्या होता है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस, ठीक है। बट वन थिंग इज देयर, एमएसपी जो ही अनाउंस करती है गवर्नमेंट ने जब ये कंसेप्ट लाया, इनिशियली इट वाज फॉर व्हीट, ठीक है, सबसे पहले व्हीट पे दिया गया था। एमएसपी की कोई लीगल बैकिंग नहीं है, इट इज जस्ट अ प्रॉमिस फ्रॉम द गवर्नमेंट दैट नो डाउट they are fulfilling the promise. They are every year they are announcing what? MSP. And MSP is always announced before the sowing season. मतलब ऐसा ना हो कि प्रोडक्शन ज्यादा हो उसको देखकर हम करें, ऐसा ना हो प्रोडक्शन कम हो उसको देखकर हम करें। गवर्नमेंट से कुछ भी हो, ये रहा एमएसपी आपके सो करने से पहले ही, ठीक है। वी आर गिविंग यू द एमएसपी, द रेट्स बिफोर सोइंग सीजन। एंड एमएसपी एज ऑफ नाउ इज ऑन 22 क्रॉप्स, 22 क्रॉप्स, और शुगर केन इज वन ऑफ देम। बट शुगर केन का नाम अलग है, वी विल सी आगे जब हम उसको पढ़ेंगे। शुगर केन पे एमएसपी नहीं मिलता, शुगर केन पे भी ऐसा ही कंसेप्ट है, लेकिन मिलता है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, एफआरपी, ठीक है। इसमें क्या फर्क है एमएसपी पे, वो आगे देखेंगे। बट शुगर केन इज अ सेपरेट एंटिटी, ट्रीटेड सेपरेटली। गवर्नमेंट आल्सो अनाउंसेस व्हाट? प्राइस ऑन शुगर केन, बट दैट प्राइस इज नॉट नोन एज एमएसपी, दैट इज नोन एज फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, एफआरपी, ठीक है।
तो एमएसपी ये हुआ। अब क्या है मसला, गवर्नमेंट ने कहा दैट वी विल अनाउंस एमएसपी ऑन लगभग 22-23 क्रॉप्स, ठीक है। तो अगर आपसे कोई ना खरीदे हम खरीदेंगे, लेकिन हो क्या रहा है, मेजॉरिटी गवर्नमेंट इज ओनली प्रोक्योरिंग राइस एंड वीट, नथिंग एल्स, राइस एंड वीट, क्योंकि 22 पे एमएसपी आपने क्या अनाउंस कि अगर गवर्नमेंट की नीड है तब हम खरीद लेंगे, इस प्राइस पे खरीद लेंगे, लेकिन गवर्नमेंट इज ओनली प्रोक्योरिंग व्हाट, राइस एंड नॉट द अदर थिंग्स। मेजॉरिटी केसेस में ये प्रोक्योर नहीं कर रहा है गवर्नमेंट। इट हैज चेंज्ड द फार्मिंग पैटर्न्स टू ओनली राइस एंड वीट, ठीक है। पहले तो ये हो गया, फार्मिंग पैटर्न्स टू राइस एंड वीट। दूसरा क्या हुआ, दिस इज नॉट गारंटीड। अभी जो लड़ाई चल रही है ना वो इसी पे चल रही है। द फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग राइट नाउ, वेयर, नियर द दिल्ली बॉर्डर, अभी चल रहा है ये। दे आर प्रोटेस्टिंग फॉर ए गारंटीड MSP. They are saying give a legal backing to what? MSP. Make it mandatory. If you are announcing MSP on 22, procure all the 22 on MSP. Government is announcing MSP, but इसकी मर्जी है अभी, it's not legal right now. Government farmers are saying make it legal. We want a guaranteed MSP. ठीक है, तो as of now MSP is not guaranteed. As of now MSP has no statutory backing, but farmers are wanting what? Statutory backing. ठीक है, और भी ज्यादा इशू है इसके, वो देखेंगे। अभी जस्ट वी आर गिविंग एन हिंट कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। इसमें एक और चीज है, वी हैड हाई यील्डिंग सीड्स, ठीक है। बेसिकली ग्रीन रेवोल्यूशन फोकस्ड ऑन सीड्स, इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर्स। लेट्स कीप दिस थिंग इन माइंड। दीज आर द थ्री ज्वेल्स ऑफ व्हाट, ग्रीन रेवोल्यूशन। हाई यील्डिंग सीड्स, इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर्स, इन तीन पे इन्होंने मेन फोकस किया है, एंड दे ट्राई टू व्हाट, इंक्रीज द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। तो बेसिक थ्री ज्वेल्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन आर हाई यील्डिंग सीड्स, इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर, ठीक है। इन तीन पे ज्यादा फोकस किया गया था। अब how MSP is given or how MSP is announced, there is an attached office, अभी हमने लिखा था, ठीक है, attached office with a secretariat or a directorate, ठीक है। Similar cases में there is an attached office with the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare known as Commission for Agriculture Costs and Prices, CACP. This is the commission which recommends, which, याद रखना मैं क्या लिख रहा हूँ, which recommends MSP, which recommends MSP. This is the commission which recommends MSP. ये commission MSP को announce या legalize नहीं करता, ठीक है। It recommends to the government MSP. तो MSP फिर बोलता कौन है, चाहे इसी को बोले, पहले तो ये recommendations binding नहीं है, ठीक है, मगर usually government goes with the recommendation because it is an expert committee, expert panel, it has seen all the parameters. Usually government goes with this, लेकिन this is not the hard and fast rule. Government can give more than this or less than this depending upon the choice of the government, ठीक है। So this body recommends what? MSP, and gives these recommendations to Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, gives these recommendations to Cabinet Committee on Economic Affairs, and this is the body, कौन सी, CCEA, which announces what? MSP. MSP is announced by this. Once that announcement is done, तो इस साल जो भी प्रोक्योरमेंट होगी, जो भी अनाउंसमेंट हुई है यहां से, उन्हीं रेट्स पे होगी। तो दिस इज द mechanism by which MSP is what? Announced. First, CACP gives what? Its recommendations to the Cabinet Committee on Economic Affairs. This is the body which announces, and this is the body it recommends. It recommends. And किस basis पे ये recommend करती है? Everything we will write, but ठीक है, CACP recommends कि इतना होगा क्या MSP, कितना? CACP recommends 1.5 times the cost of production based on A2 plus FL formula. 1.5 times the cost of production based on A2 plus FL formula. ये तो सिंपल है, इधर तक आपका कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका 1.5 टाइम्स हम आपको क्या देंगे हमेशा, what we will give you, this is the MSP on that. If for example the cost of production is X units for paddy is rice, ठीक है, X units, we will give 1.5 times X as MSP. ये आपके लिए श्योर है, लेकिन ये 1.5 टाइम्स ये जो कॉस्ट है किसका, X, आपने कहा कि X हमें लगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन,
ठीक है, तो एमएसपी विल बी 1.5 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बट ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप किन किन फैक्टर्स को दिमाग में रख के निकालते हो? व्हाट आर द फैक्टर्स यू कीप इन माइंड एंड डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? क्या क्या आप लेते हो इसमें और क्या क्या नहीं लेते? द फॉर्मूला विच इज करंटली प्रेवलेंट इज A2 प्लस FM। दूसरी डिमांड फार्मर्स की जो लड़ रहे हैं, पहली डिमांड क्या थी? गारंटी क्या करो? एमएसपी। लीगलाइज व्हाट? एमएसपी। स्टैट्यूटरी बैकिंग दे दो किसको? एमएसपी को। दूसरी डिमांड A2 प्लस FN से शिफ्ट हो जाओ टू C3। तो this is another formula by which cost of production is this calculated. Farmers are saying calculate cost of production by this, not this. लेकिन अभी prevalent क्या है? जो ये है, ये क्या है, ये क्या है, दोनों देखेंगे। Simply, what is A2 first? A2 are cost of inputs incurred. लाइक सीड्स, आपने सीड्स खरीदे, ठीक है, आपने इलेक्ट्रिसिटी की बिल पे की, चाहे मोटर पंप चलाना है, कुछ भी चलाना है, ठीक है, इरिगेशन में आपका खर्चा हुआ, ठीक है, इरिगेशन में आपका खर्चा हुआ, आपने लेबर पे खर्चा किया, आपने लेबर पे खर्चा किया, इरिगेशन पे खर्चा किया, बाकी जो भी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है, पेट्रोल व्हाटएवर आपके ट्रैक्टर में लग रहा है, एवरीथिंग। पहला तो ये है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन व्हाट? A2। देन व्हाट इज दिस FL? क्योंकि ये दोनों को कंबाइन करता है, ठीक है। FL इज योर फैमिली लेबर। आपकी जो फैमिली थी वो कोई और भी प्रोडक्टिव काम कर सकती थी, लेकिन आपके सारे मेंबर्स एग्रीकल्चर में आए और वो सारे काम कर रहे हैं किसमें? एग्रीकल्चर में। वी विल टेक दैट लेबर इनटू अकाउंट। हम वो भी काउंट करेंगे आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। अदरवाइज अगर आप इधर इस फार्म पे काम नहीं करते, आप कहीं और काम करते, मजदूरी ही कर लेते फॉर एग्जाम्पल, लेकिन कुछ तो कमाते, वो वाला कॉस्ट हम आपके इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। So this becomes the formula for CACP, on which CACP recommends what? The MSP to the Cabinet Committee on Economic Affairs, and then Cabinet Committee announces it MSP. ठीक है, A2 plus FL. So C3 is much more comprehensive. It includes A2, it includes FL, and it includes much more things. We will see subsequently. दो चार अगर इससे कंप्यूट करेंगे तो ज्यादा ही आएगा, इसीलिए फार्मर से बोल रहे हैं। इसमें A2 plus FL ऑटोमेटिकली है और कुछ चीजें हैं, we will see, ठीक है। तो इस पे बात चल रही है कि हमारी जो फॉर्मूला है उसको चेंज करो फ्रॉम दिस टू दिस एंड गिव अस गारंटीड व्हाट? एमएसपी, लीगल बैकिंग टू द एमएसपी। दिस इज बेसिक अबाउट व्हाट? एमएसपी। तो हाउ बट दिस इज डन, कैसे होता है ये? देयर इज अ मैकेनिज्म फॉर इट। फॉर एग्जांपल दिस इज फार्मर, दिस इज ये यूनियन गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट लिख रहा हूं, इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट procures it from the farmer, ठीक है, on what rate? MSP। इसको MSP दिया, इससे क्या लिया? इससे वो प्रोड्यूस लिया जो भी था। यूनियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे कौन लेता है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI, ठीक है। देन फ्रॉम देयर इट इज ट्रांसपोर्टेड इन रेस्पेक्ट टू स्टेट गवर्नमेंट। और इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं, इफ स्टेट गवर्नमेंट्स वांट्स टू गिव यू मोर, फॉर एग्जांपल MSP यूनियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 25 रुपीज ऑन पर्टिकुलर थिंग, स्टेट गवर्नमेंट वांट्स 28, 3 रुपए मेरी तरफ से, उसको बोनस कहते हैं, उसको MSP नहीं कहते हैं, ठीक है। दैट इज नोन एज बोनस। अब स्टेट गवर्नमेंट वांट्स टू गिव मोर टू देयर फार्मर्स, MSP 25 है, मैं 5 रुपए अपनी तरफ से, चीफ मिनिस्टर, ठीक है, बोल रहा है 25 पे खरीदना था, अब हम 30 से खरीदेंगे आप पे, लेकिन जो वो 5 दिया दैट इज बोनस, दैट इज नॉट MSP। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स का काम क्या है? स्टेट गवर्नमेंट्स का काम है इशुएंस ऑफ राशन कार्ड्स, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स, यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन करना इन सारी चीजों की, दैट इज द मैंडेट ऑफ व्हाट? स्टेट गवर्नमेंट। एंड इवन एग्रीकल्चर इज आल्सो अ स्टेट सब्जेक्ट, तो स्टेट गवर्नमेंट हैज टू प्ले अ वाइटल रोल, बट इट इज द यूनियन गवर्नमेंट डिस्पाइट इट इज नॉट द यूनियन सब्जेक्ट, ठीक है। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट्स, एग्रीकल्चर इन द स्टेट लिस्ट, इट इज नॉट इन द यूनियन लिस्ट, डिस्पाइट दैट यूनियन गवर्नमेंट कम्स एंड अनाउंसेस व्हाट? MSP, ठीक है। लेकिन मेन जो प्रैक्टिसेस है किसकी? एग्रीकल्चरल मार्केट्स की, एग्रीकल्चरल डिस्ट्रीब्यूशन की, राशन कार्ड, एवरीथिंग इज डन बाय व्हाट? स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो यहां पे ऐसा होता है एंड देन स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पहुंचता है एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर डूइंग दिस थिंग, ठीक है। दो तरीके से होगा। पहला, इसको कहते हैं सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट, फार्मर से लिया FCI किसको देगा? स्टेट गवर्नमेंट को, ऐसे होगा, इसको कहते हैं सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट। दूसरा तरीका सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट का, दूसरा वो भी सेंट्रलाइज्ड, स्टेट गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगा MSP पे और किसको देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट विल पे टू द स्टेट गवर्नमेंट द MSP जो इसने इसको दिया था, और वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और सब कुछ जो इनको लगा कहां पहुंचाने में? FCI।
Are you understanding? Both are known as centralized what? Procurements. We have another concept known as decentralized procurement that started in 1997. Decentralized procurement. In that, state government procures from the farmers MSP पे and it distributes right there जैसे इसको distribute करना है and government of India gives him the necessary cost. It is in order to reduce the burden of government of India. ठीक है, पहले तो ये करता था procure, फिर इसको बेचता था, फिर ये तो वापस इसी को तो देगा distribute करने के लिए. From 1997 government said आप खुद कर लो, जो cost आता है हमसे ले लो, इससे लेकिन हमारा cost burden कम हो जाएगा. ठीक है, transportation cost, logistics and everything it will reduce. ठीक है, decentralized procurement. सेंट्रलाइज्ड जहां पे चाहे स्टेट करे या तो सेंटर करे, दोनों टर्म्स में सेंटर के पास पहुंचेगा पहले, फिर वहां से जाएगा. इन्होंने कहा कि आप ही कर लो, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, बहुत सारी चीजें कम हो जाएगी, बाकी जो पैसा बनता है वो हमसे ले लो. ठीक है, दिस इज सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड व्हाट प्रोक्योरमेंट. ऐसे तरीके होते हैं इसको प्रोक्योर करने के. अब व्हाट इज एफआरपी शुगर केन का? शुगर केन का थोड़ा सा अलग है. दिस इज शुगर केन, ये फार्मर के पास है. एमएसपी में क्या है? एमएसपी में द प्रोड्यूस जो भी है गवर्नमेंट को आप सेल करोगे और गवर्नमेंट बाई करेगी. ठीक है, एट व्हाट रेट? एमएसपी अगर आपको सेल करना है. इधर फार्मर्स जो शुगर केन के साथ करते हैं, दे विल गिव टू द मिल ओनर्स, नॉट द गवर्नमेंट, एंड दे हैव टू परचेज इट ऑन एफआरपी व्हिच गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड. व्हिच गवर्नमेंट हैज. यहां पे ये टेक्निकल डिफरेंस है पहली. इधर शुगर केन में आप शुगर केन गवर्नमेंट प्रोक्योर, ये मिल ओनर को प्रोक्योर करना है जो शुगर के साथ डील करता है शुगर प्रोसेसिंग में, लेकिन किस रेट पे? एफआरपी पे. ठीक है, यहां पे गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, यहां पे गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व है. ठीक है, और भी बाकी क्या है वी विल सी सब्सिक्वेंटली. राइट फ्यू थिंग्स फर्स्ट. एग्रीकल्चर एज द हेडिंग, सब हेडिंग एग्रीकल्चरल प्राइसिंग पॉलिसी. एग्रीकल्चरल प्राइसिंग पॉलिसी. Agricultural pricing policy. It plays an important role. It plays an important role. क्या? Agricultural pricing policy. It plays an important role in achieving growth, and equality, in achieving growth and equality in the Indian economy. एक और ट्रेंड है यहाँ पे, यू मस्ट सी दिस. जो ही ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, क्या हुआ? ग्रीन रेवोल्यूशन. वी इंपोर्टेड हाई यील्डिंग सीड्स. जो ही हमने इसको इंपोर्ट किया, इट मींस दे आर नॉट एंडेमिक टू इंडिया. दे आर नॉट इंडियन. ठीक है, they are not suitable for cultivation in India. You have to make them suitable. It's common sense. Yes. They are not adapted in the soil, in the environment, in the conditions which are prevalent in India. You have imported them. You have to artificially make it like that so that it can grow. So what happened? Use of irrigation became widespread. इससे पहले भी था, लेकिन हमारे पास जो क्रॉप्स थे, ठीक है, वहां पे उन्होंने अडेप्ट कर लिया था इंडियन एग्रीकल्चर है ना, सॉइल और क्लाइमेट से. यहाँ पे एडेप्शन नहीं है, यहाँ पे आपको आर्टिफिशियली बनाना पड़ेगा. ठीक है, आप क्या करते थे? आप पहले प्लॉह नहीं करते थे, अगर करोगे तो ठीक, नहीं करोगे तो नहीं करोगे तो वापस आप सीड आप सो करते थे. लेकिन इन सीड्स के साथ ऐसा नहीं है. यू हैव टू फर्स्ट प्लॉ द लैंड, द यूज ऑफ ट्रैक्टर्स, द यूज ऑफ एवरीथिंग इंक्रीज्ड. ठीक है. सेकंड, वाटर इनमें इंक्रीज. ठीक है, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा, लेकिन आपके पास अब मशीनरी होनी चाहिए इनको इरिगेट करने की. आपके पास ट्रैक्टर्स होने चाहिए. ठीक है, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, जो पहले भी जरूरत थी लेकिन उतनी लेवल की जरूरत नहीं थी. इट इंक्रीज द इनपुट कॉस्ट. व्हेन इट इंक्रीज द इनपुट कॉस्ट, बैंक्स केम और एग्रीकल्चरल फाइनेंसिंग स्टार्टेड. एंड इसी असना में, इसी दौरान जो ये हो रहा था, नाबार्ड केम इनटू एग्जिस्टेंस. ठीक है, वो हमने देखा था. ठीक है, नाबार्ड आल्सो केम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ दिस थिंग. नाउ यू हैव टू गिव एग्रीकल्चरल फाइनेंस. देयर शुड बी अ पर्टिकुलर जो भी ओवरसाइट करेगा ऑन एग्रीकल्चरल फाइनेंसिंग.
ठीक है, ये सारी चीजें हुई, इसमें रिसर्च बढ़ने लगी, तो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज बढ़ने लगी, आपके यहाँ भी बनी है, ठीक है, इसके बाद ही ठीक है एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज केम, एवरीथिंग केम आफ्टर व्हाट, ग्रीन रेवोल्यूशन। फाइनेंसिंग सब कुछ होने लगा, धीरे धीरे इसमें इंक्रीज होने लगा, इट बिकेम ए discipline of study. Now you are doing your bachelor's or master's, everything in agriculture. How to improve seed quality, how to improve, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो आपके एंडेमिक सीड्स थे, they were pesticides resistant. ये आए बाहर से ये सीड्स, ये यहाँ के पेस्टिसाइड से रेजिस्टेंट नहीं है, then you have to use pesticide, you have to use fertilizer. ये सारा जो था ये कॉस्ट पहले नहीं था, यू आर यूजिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, मैन्योर एंड ऑल, चल जाता था कम, अब नहीं चलेगा, बिकॉज द सीड्स आर हाई यील्डिंग सीड्स इंपोर्टेड फ्रॉम समवेयर एल्स, दे आर नॉट सूटेबल फॉर द कंडीशंस व्हिच वर हियर, इट इंक्रीज द कॉस्ट। तो फाइनेंसेस आए, लेकिन फाइनेंसेस के साथ साथ फाइनेंस पे क्या है, फाइनेंस इज अ लोन, यू हैव टू पे इट एट वन टाइम और द अदर। तो ये हो नहीं पाया फार्मर से, ऑलरेडी फार्मर्स की कंडीशन कॉलोनियल एरा में बहुत ही खतरनाक तरीके से गिर गई थी, they were not in a position कि वो अपने आप को स्टैंड करें, इस ग्रीन रेवोल्यूशन को क्या करें, मतलब हैंडल करें कि क्या करें। रीजनल डिस्पैरिटीज बिकेम एविडेंट विद रेस्पेक्ट टू ग्रीन रेवोल्यूशन। जो फार्मर्स ऑलरेडी अमीर थे उन्होंने बेनिफिट उठा लिया किसका, ग्रीन रेवोल्यूशन, जिनके पास पहले से पैसा नहीं था वो गरीब के गरीब रह गए। यू सी पंजाब हरियाणा, it reaped the benefits of what, green revolution, already they had money and they invested and they reaped the benefit. And you see eastern UP Bihar और the southern parts के जितने भी थे हमारे फार्मर्स, they are not in that condition, हालांकि दोनों फार्मर्स हैं, ठीक है। इट्स बिकॉज द डिस्पैरिटी क्रिएटेड, बट जिसके पास पैसा था उसने इन्वेस्ट किया और उसमें बल्क में प्रोडक्शन हुई, प्रोक्योर किया, बेचा, एक्सपोर्ट किया और फायदा कमाया। जिसके पास इनपुट के लिए पैसा नहीं था वहीं का वहीं रह गया। पहले क्या था, दोनों लगभग एक समान थे, अब लेवल्स बनने लगी, क्लास कॉन्शियसनेस होने लगी, सोसाइटी में भी डिस्पैरिटी आने लगी, क्योंकि पैसे उसके पास ज्यादा है, आपके पास नहीं है। पहले दोनों फार्मर लगभग सेम थे, आपके पास पैसा था लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था आपके एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे, मेरे पास नहीं था, हम सेम लेवल के थे। अब आपका पैसा यूटिलाइज होता है आपके इनपुट्स में, उससे आपकी ज्यादा प्रोडक्शन होती है और ज्यादा कमा लेते हो। मेरे पास पैसा ही नहीं है, इनपुट में डाल नहीं सकता, नहीं कर सकता। गवर्नमेंट ने इस चीज को काउंटर करने के लिए एक और कंसेप्ट लाया, व्हिच इज आवर टॉपिक इसके बाद, सब्सिडीज का। उसमें फर्टिलाइजर सब्सिडीज और भी बहुत सारी सब्सिडीज गवर्नमेंट इज गिविंग, एंड इट इज अ वेरी लार्ज व्हाट दिस थिंग बिल, बहुत ही ज्यादा बिल आता है इन सब्सिडीज का गवर्नमेंट को, इट्स अ बर्डन ऑन एक्सचेकर, लेकिन गवर्नमेंट डज इट। वो देखेंगे सब्सिडीज में इसका फिलोसॉफिकल कंसेप्ट क्या है। फिलहाल ये सारी चीजें ग्रीन रेवोल्यूशन से हुई, इससे प्रोडक्शन नो डाउट इंक्रीज्ड, बट दीज वर समहाउ डिसएडवांटेजेस, ठीक है। यहाँ पे रीजनल डिस्पैरिटीज इंक्रीज हो गई और यहाँ पे इसका इनपुट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, जो पहले हमारे एंडेमिक सीड्स में नहीं था, दे वर रेजिस्टेंट टू एवरीथिंग, राइट। And equality in the Indian economy in general, and to the agricultural sector in particular. Equality to the Indian economy in general and to the agricultural sector in particular. Full stop. The major underlying objective of the government's price policy is to protect both the producers and the consumers. देखो, if you legalize MSP, आप पे तो ज्यादा बर्डन आने वाला है। लीगलाइज अगर करोगे तो ये बहुत महंगा पड़ेगा आपको कॉस्ट। क्यों? अगर आपने लीगलाइज किया एमएसपी तो कुछ भी हो जाए, गवर्नमेंट हैज टू प्रोक्योर इट फॉर एग्जांपल ऑन 30 रुपीज पर केजी के कॉस्ट पे। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट के बंदे को खरीदना है इसी चीज को, गवर्नमेंट तो 30 पे ले रही है, आपको फार्मर को 35 देना पड़ेगा, 40 देना पड़ेगा, तब आपको देगा, वरना नहीं देगा। ठीक है, अब आपने 35 दिए, 40 दिए, वो क्या अपनी जेब से देगा? अल्टीमेटली ये कॉस्ट किसको जाएगा? कंज्यूमर को, जिसको सब्जी लेनी है, जिसको राशन खरीदना है। This will be transferred if it is legalized. This is one of the drawbacks. इसके advantages भी है लीगल एमएसपी के, but drawbacks एक ये भी है। तो गवर्नमेंट की जो प्राइस पॉलिसी है, that is to protect both the producers, that is the farmers, and the consumers. Consumers को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? फार्मर्स को तो समझ आया, there is excess supply, demand decreased,
इनकी प्राइस गिर गई, तो गवर्नमेंट ने बोला हम आए, हम आपकी मदद करेंगे। इनको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? कंज्यूमर्स को, इसी प्राइस पॉलिसी से। बताओ। प्राइस सेट करते हैं। कंट्रोल करते हैं कितना मतलब डिमांड। Yes, similar to this. When they procure, when they जाता कहाँ है वो FC? It is the government, उसके पास अब बफर स्टॉक्स है। क्या है? बफर स्टॉक्स। जो ही मार्केट में किसी चीज की किल्लत हो गई और प्राइसेस क्या हो गए? राइज, दे रिलीज देयर बफर स्टॉक एंड प्रोटेक्ट द कंज्यूमर। जब गवर्नमेंट के पास बफर स्टॉक ही नहीं है, वो किस चीज को रिलीज करेगा? Are you understanding? They have the buffer stock with respect to what? When they procure it from farmers. When there is increase in demand in the market, the prices go up. When the prices go up, government releases its buffer stocks so that supply and demand match हो जाए। तो prices बच गए, आप भी बच गए, ये भी बच गए। Both the producers and the consumers, full stop. Achieving food security at both the national and household level is one of the major challenges in India today. Is one of the major challenges in India today. इसी असना में हमने फूड सिक्योरिटी एक्ट भी लाया 2013 में, वो हम अलग से पढ़ने जा रहे हैं। Full stop. Next slide. With the advent of green revolution, in the Indian agricultural sector, the input cost of production increased. The input cost of production increased. हुआ कि नहीं हुआ increase? ठीक है? Input cost increased. Comma. Further, a trend of agri-finance was taken up. Taken up by the farmers. And as a result, there was boost in the production of food grains. Especially paddy and wheat. और ये बात आप याद रखेंगे, wheat is the first crop जिस पे क्या किया था अनाउंस? MSP. ठीक है? Especially paddy and wheat. Full stop. As there was rapid increase in the production, the supply in the market increased. And the prices decreased. नहीं होगा? And the prices decreased. Full stop. It led to agrarian stress. And the farmers resorted to suicides as well. Full stop. The government of India अगर ये सब कुछ होता ना 1991 के बाद, कभी भी एमएसपी का कांसेप्ट ही नहीं होता, बिकॉज एट दैट टाइम व्हाट वाज प्रेवलेंट? सोशलिज्म. ठीक है? स्टेट लेड प्लानिंग. स्टेट आया सामने कि क्यों हो रहा है ऐसा, हम कुछ करते हैं. आज कुछ नहीं करते. अब ये हो चुका है, इसको वापस लेना बहुत बड़ी डिफिकल्ट बात है. लीगलाइज करने पे लड़ाई चल रही है. ठीक है? The government of India came with an idea to support the farm sector. By introducing a concept of minimum support price. MSP. Minimum support price. Give the heading, MSP.
MSP. It is the price. It is the price paid by the government. It is the price paid by the government on procuring food grains from the farmers. जब फार्मर से लेंगे उसको जो प्राइस देंगे वो है क्या? MSP. Food grains from the farmers. And on behalf of the government, there are institutions. On behalf of the government, there are institutions that will do the procurement. Like Food Corporation of India. ब्रैकेट में लिखना है स्टैट्यूटरी बॉडी, ये क्लॉज से बना है, ठीक है. फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ब्रैकेट में स्टैट्यूटरी बॉडी. फुल स्टॉप. MSP is announced on यूजुअली ये 23 है, लेकिन इस पे एक पे FRP लगता है, ठीक है, शुगर केन पे, तो हम 22 लिखेंगे. MSP is announced on 22 crops, that is 14 kharif crops, 6 rabi crops, and 2 commercial crops. Kharif crops, rabi crops, and 2 commercial crops. ठीक है. Next line paragraph. MSP recommendation is done by a commission for agricultural costs and prices. Is done by a commission for agricultural costs and prices, CACP. Full stop. It is an attached office under the ministry. It is an attached office under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Agriculture and Farmers Welfare. ये उस अटैच्ड ऑफिस की एग्जांपल में पबैड में डाल देना इसका नाम, वहां एक अटैच्ड ऑफिस, उसके नीचे ब्रैकेट में लिख देना CACP. ठीक है. Full stop. It decides the prices. CACP ही कैलकुलेट करता है, ठीक है. CACP. It decides the prices on various factors. वो आपने देखे A2 plus FL पे डिसाइड करता है, वो लास्ट में लिखेंगे. On various factors and recommends it to. किसको recommend करता है? पीछे देखो, अभी पढ़ के कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, पीछे देख के भी मिल नहीं रहा है, ठीक है. कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, which is the final authority to take call on MSP. ठीक है. Full stop. The government announces MSP. The government announces MSP before the sowing season. And if state government wants, it can also announce an additional income. State government wants, it can also announce an additional income. On MSP to the farmers. Known as bonus. Full stop. Government procures food grains. Especially paddy and wheat. इन पे ज़्यादा फोकस है गवर्नमेंट का. Especially paddy and wheat. For its public distribution system, PDS. For its public distribution system. Comma.
integrated child development scheme ICDS, integrated child development scheme ICDS, एटसेट्रा एटसेट्रा, इन चीजों के लिए गवर्नमेंट प्रोक्योर करता है एटसेट्रा। और किस चीज के लिए? टू मेंटेन ए बफर स्टॉक, ठीक है, एंड also to have a buffer stock, and also to have a buffer stock. Full stop. It is done through two ways. It is done through two ways. दो तरीकों से ये होता है. It is done through two ways. Number one, centralized procurement. Centralized procurement. Under this, FCI will procure from farmers. Under this, FCI will procure from farmers and use the crops for above mentioned schemes. जो भी लिखा आपने ऊपर, and use the crops for above mentioned schemes, या तो buffer stock या ICDS या PDS. Full stop. However, state government can also procure. State government can also procure and transfer it to the central government. Transfer it to the central government. And transfer it to the central government. Full stop. In turn, state government will be paid its due charge. In turn, state government will be paid its due charge. Will be paid its due charge, and the central government will use the food grains. Central government will use the food grains for above mentioned schemes. तो आप डायरेक्टली एफसीआई से करो या स्टेट आपको दे, दोनों को कहते हैं सेंट्रलाइज्ड व्हाट? प्रोक्योरमेंट। अगर लेकिन स्टेट प्रोक्योर करता है और स्टेट ही डिस्ट्रीब्यूट करता है, यूनियन की तरफ नहीं पहुंचाता, दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड। राइट, सेकंड, डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट। Decentralized procurement started from the year 1997. Started from the year 1997 in India. Full stop. State governments will make arrangement for procurement. State governments will make arrangement for procurements, and it distributes the crop itself. And it distributes the crop itself. And it distributes the crop itself. It is done to reduce the procurement costs. It is done to reduce the procurement costs, transportation costs, labor charges, उतारना चढ़ाना, labor चाहिए, labor costs, etc. And in turn, central government will be providing money to the state government. And in turn, central government will be providing money to the state government. Paragraph. ये था decentralized procurement. Paragraph. However, there is no law or legislation. इसी पे लड़ाई है आज, ठीक है? There is no law or legislation that makes it necessary for the government. No law or legislation that makes it necessary for the government. That makes it necessary for the government to announce MSP. To announce MSP. अब लॉ नहीं है इसका, तो कॉन्स्टिट्यूशन की तो बात ही नहीं है, वहां पे ये सब चीजें नहीं है, ठीक है? Full stop. In the context of sugarcane, we use fair and remunerative prices, FRP, fair and remunerative price, FRP. Full stop. The FRP is based कि हमें MSP नहीं FRP डालना है, किस पे? शुगर पे।
It is based on the recommendations of Rangarajan Committee report. On the recommendations of Rangarajan Committee report. Rangarajan Committee report on reorganizing the sugarcane industry. On reorganizing the sugarcane industry. On reorganizing the sugarcane industry. Full stop. ये चीजें इंपॉर्टेंट है जो आप लिखने जा रहे हो, प्रीलिम्स में आ सकते हैं. The payment of FRP in the country. The payment of FRP in the country. The payment of FRP in the country is governed by the sugarcane control order. Is governed by the sugarcane control order 1966. Sugarcane control order 1966, which was issued under Essential Commodities Act 1955. Which was issued under Essential Commodities Act 1955. इसका मतलब sugarcane, आपका sugar is an essential commodity under the Essential Commodities Act. And under this act, when it becomes essential commodity, you have an sugarcane order in 1966 that regulates its price. This is a fact, you should remember this fact. Essential Commodities Act 1955, which mandates इसके अंदर जरूरी है, which mandates payment within 14 days of the delivery. Payment within 14 days of the delivery. जो ही आपने शुगर केन दिया 14 days के अंदर, it's mandatory that the mill owner will give you what? Payment. Government नहीं, ठीक है? Full stop. It is determined on the recommendations of FRP को भी determine करता है. It is determined on the recommendations of CACP. It is determined on the recommendations of CACP. On the recommendations of CACP and announced by CCEA, Cabinet Committee on Economic Affairs. Same. Announced by CCEA, Cabinet Committee on Economic Affairs. Delays in payment can attract an interest up to 15%. Delay in payment can attract an interest up to 15%. And the sugar commissioner, ये post है, ठीक? And the sugar commissioner can recover unpaid FRP by attaching properties of the mill. ये कितना संगीन है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर कि अगर आप पेमेंट नहीं करो आपकी प्रॉपर्टी भी क्या कर दी जाएगी, अटैच कर दी जाएगी, ठीक है? शुगरकेन मिल ओनर्स, शुगरकेन किसको देंगे? मिल ओनर्स. एंड मिल ओनर्स ये कौन देंगे इनको? फार्मर्स, ठीक है? और ये मिल ओनर्स इनको क्या देंगे? FRP. ये है ऐसा. लेकिन अगर ऐसा है फूड क्रॉप्स इनको देंगे गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट क्या देगी? MSP. ये है फार्मर्स, ये भी देते हैं. ये अपने लिए बना लो साइड में कहीं.